Hello my dear lovely students, welcome back to your today's English class. Students, in our today's English class we are going to start a new lesson. Yes, see, it's your lesson number 5, and what is the name of the lesson? The apes. What is the name? The apes. Now, what are apes? We are going to learn in this lesson what are apes, which animals are known as apes, and how apes live. In today's lesson we are going to learn. So without wasting much of our time, come let's start our today's lesson, the apes. You may have seen apes in a zoo. Now most of the people identify apes with monkeys and langurs, but they are different. Apes do not have tails, while monkeys and langurs have tails. Now what are apes? Apes क्या होते हैं? कौन से एनिमल्स को apes बुलाते हैं? You might have been seen apes in zoo. आपने apes को zoo में देखा होगा. Apes क्या होते हैं? Apes monkey की ही breed का एक breed होता है जिसको apes बुलाते हैं. The apes most of the people identify apes with monkeys. बहुत से लोग apes को monkey से identify करते हैं, but apes monkey नहीं होते हैं. They are different and they are not langurs. Apes ना तो monkey होते हैं ना ही langurs होते हैं. So what are they? Apes do not have tails while monkey and langurs have tails. Apes को क्या है? Tails यानी कि पूंछ नहीं होती है, जबकि monkey और langurs को पूंछ होती है. The apes along with monkeys and men belongs to the primate order of placental mammals. Now what are apes? Apes क्या है? Apes जो ना ही monkey है ना ही man है, तो क्या है? They belong to primate order of placental mammals. वो mammals के pyramid का एक placental है. Mammals have a hairy body. They give birth to fully developed young ones. They feed their young ones on milk products by the mammary glands of the females. Hence, they are named mammals. Now, what are mammals? Mammals क्या होते हैं? Mammals have hairy body. Mammals को hairy body होती है. Hairy body means they have hairs, too much hairs on the body. That is known as hairy body. हैरी बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी पे बहुत सारे हेयर यानी कि बाल हो. दे गिव बर्थ टू अ फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस. मतलब फुल्ली डेवलप्ड, जो डेवलप्ड यंग वंस होते हैं, छोटे बेबी जो फुल्ली डेवलप होते हैं, जिनको 2 hands 2 legs 2 eyes 1 nose होता है, उसको बोलते हैं फुल्ली डेवलप. ओके, दे गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप यंग वंस. मतलब एप्स एक फुल्ली डेवलप यंग वंस को बर्थ देते हैं. दे फीड देयर यंग वंस ऑन मिल्क. वो उनके बच्चों को मिल्क पे फीड करते हैं, जो मम्मा मिल्क पिलाती है. अंडरस्टूड? पिरामिड ऑर्डर ऑफ मैमल्स डिफर फ्रॉम अदर मैमल्स लाइक एलिफेंट, काउज, डियर, लायंस. Pyramids have well developed eyesight, often with binocular vision and relatively large brain. Pyramids live mainly on or among the trees. They usually climb by grasping. They have fine digits on each climb, nails commonly present instead of claws, big toes and often thumb, well developed. Now, apes. How are apes? Apes कैसे होते हैं? Apes mammals की तरह होते हैं. Mammals also like other animals. Mammals like elephant, हाथी, cows, गाय, deer and lions. ये है mammals. तो इन्हीं की तरह apes भी mammals होते हैं. Pyramids have well developed eyesight. उनकी apes की जो eyesight होती है, means eyesight मतलब देखने की क्षमता. ये तो उनका eyesight एकदम strong होता है with binocular vision. Binocular vision means हम binoculars यानी कि टेलीस्कोप से देखते हैं ना, वैसे ही विजन एप्स में होती है. मतलब उनके पास परफेक्ट आईसाइट होती है, जिससे वो क्लियरली कंफर्मली देख सकते हैं कि सामने क्या है. दे ऑल्सो लिव मेनली अमॉन्ग द ट्रीज. मतलब वो ज़्यादातर
ट्रीज में ही रहते हैं, रहना पसंद करते हैं। They have 5 digits on each limb. Now, as human beings have 5 fingers, जैसे इंसानों की 5 fingers होती है, वैसे उनके भी 5 क्या बोलेंगे हम, digits बोला जाता है। They have 5 digits on each limb. Limb means जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे उनके limb होते हैं। Nails commonly present, हमारे जैसे nails होते हैं उनके भी nails commonly present होते हैं। Claws, big toe and often thumb well developed. Thumb जैसे अंगूठा जिसको बोला जाता है, उनके पास भी thumb होता है well developed के जैसे। Pyramids usually produce one child at a time. The youngs are cared by the mother. They often form family groups of mother, father and offspring. Pyramids are mostly gregarious in habit, moving about in large troops, searching for food. Now, apes are very big in size, है ना। apes क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं, right? They give birth to the young child. वो क्या करते हैं, यंग चाइल्ड को, मतलब एक फुल्ली डेवलप चाइल्ड को बर्थ देते हैं, ठीक है। द फादर, मदर एंड ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म फैमिली ग्रुप, मतलब उनकी फैमिली कैसी होती है, मदर, फादर और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। पिरामिड्स आर मोस्टली ग्रेगरियस इन हैबिट्स, मूविंग अबाउट इन लार्ज ट्रूप्स, searching for food. Now the apes, they always move in troops. Move in troops means वो हमेशा ग्रुप में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। और क्यों ट्रांसफ़र होते हैं, इन द सर्च ऑफ फूड, फूड के सर्च में, खाना ढूंढने के चक्कर में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं और हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, मदर, फादर, चाइल्ड, यस, ऐसे ही ग्रुप्स में रहते हैं। Monkeys have a red hairy body and a tail. They have pouches inside their cheeks. They eat food hurriedly, filling up their pouches. They chew this food later at a secure place. Now, monkeys have red hairy hair. Monkeys के पास क्या होते हैं, रेड कलर के hairy hairs होते हैं, मतलब बाल होते हैं। They have pouches inside their cheeks. उनके मुंह में, चीक्स में पाउचेस होते हैं जिसमें वो फटाफट खाना तो खा लेते हैं ऑन द स्पॉट, बट उसे बाद में प्रॉपरली च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं। दे हैव अ लॉन्ग टेल, उनके पास, मंकीज के पास एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टेल यानी कि पूंछ होती है। लंगूर्स हैव अ ग्रे और ब्लैक हैरी बॉडी एंड अ लॉन्ग टेल। लंगूर्स वो भी मंकी का एक ब्रीड होता है, उनके ब्लैक, ग्रे एंड ब्लैक ही हेयर होते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टेल। लंगूर्स के भी ब्लैक और ग्रे कलर के बाल होते हैं और उनकी भी लंबी पूंछ होती है। अ फ्रिंगे ऑफ हेयर फॉल्स ओवर देयर ब्लैक फेसेस। देयर हिंड लिम्स आर लॉन्गर देन द फोर लिम्स। ना, उनके जो ब्लैक हेयर होते हैं वो उनके फिंगे यानी कि आई साइड के ऊपर आ जाते हैं, जिससे हम उनको पहचान, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लंगूर्स हैं। एप्स रिसेंबल मैन इन नॉट हैविंग अ टेल, बट एप्स वॉक ऑन बोथ हैंड्स एंड फीट। मैन वॉक इरेक्ट। The feet of apes can grasp branches of trees like hands of man, so they are not well adapted for walking erect. Now, the apes. The apes are men in not having a tail. Apes क्या है, एक टाइप के मैन्स होते हैं जिनके पास टेल यानी कि पूंछ नहीं होती है। But apes walk on both hands and feet. वो कैसे, अपने दोनों हैंड्स और फीट पे वॉक करते हैं, है ना। द फीट ऑफ एप्स कैन ग्रैब्स ब्रांचेस ऑफ ट्रीज लाइक हैंड्स ऑफ मैन। नाउ द फीट ऑफ एप्स, फीट्स के जो एप्स के जो फीट होते हैं वो
ट्रीज के जो ब्रांचेस होती है उसको पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के हैंड होते हैं ना, वैसे एप्स के फीट होते हैं। सो दे आर नॉट वेल अडेप्ट फॉर वॉकिंग इरेक्ट, वो सीधे नहीं चल सकते। दे वॉक ऑन बोथ द हैंड्स एंड बोथ द फीट। द फीट ऑफ मैन कैन नॉट ग्रैब्स द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ए मैंस के, ह्यूमन बींग्स के जो फीट, जो पैर होते हैं, वो ब्रांचेस को पकड़ नहीं सकते, वो सिर्फ एप्स के ही फीट पकड़ सकते हैं। Man's feet form a small platform which help them to balance their body for walking erect. For walking erect means सीधे चलने के लिए मैन के जो फीट होते हैं उन्हें स्मॉल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, फ्लैट। ह्यूमन बींग्स को चलने के लिए नीचे फ्लैट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिससे वो अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। सेकेंडली, द बैकबोन ऑफ द एप्स फॉर्म अ स्पाइनल एक्ट which makes erect posture impossible, but the backbone of man have an S-shaped curve which maintains his erect posture while walking. Now as you see the apes को जब आप देखते हो तो उनका जो बैकबोन होता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, वो थोड़ा सा बेंड होता है सामने की साइड, ठीक है, जिससे वो सीधा खड़े होके चल नहीं सकते। बट when you see man, जब हम मैन को देखते हैं, the man have a S-shaped curved backbone which helps them to maintain his erect posture while walking. मैन के पास S शेप का posture होता है जो उनको हेल्प करता है वॉकिंग में, ठीक है, चलने में जो हेल्प करता है। Unlike monkeys and langurs, the apes have long arms. Today, mainly 4 types of apes are found on earth. Now, लाइक मंकीज एंड लंगूर्स, मंकीज और लंगूर्स की तरह एप्स के भी लॉन्ग हैंड्स होते हैं। लॉन्ग हैंड्स मीन्स लंबे लंबे हाथ होते हैं, है ना। नाउ टुडे इन दिस टुडेज वर्ल्ड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एप्स। आज की दुनिया में 4 टाइप्स के एप्स होते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर दोस 4 टाइप्स। फर्स्ट इज गिब्बन्स, सेकेंड इज ओरंग-उटान्स, थर्ड इज गोरिल्लास, and 4th is chimpanzees. These 4 types of apes we can find on the earth. Gibbons and orang-utans are found in Asia only. Gorillas and chimpanzees are found only in Africa. All apes like to live in trees. The leopard attack them and eat up. The apes find their security in numbers. Now As you have seen the 4 types of apes, हमने 4 types के apes देखे, ठीक है। The first is gibbon and orang-utans. These are found in Asia only. ये 2 टाइप के जो apes है वो एशिया में ही पाए जाते हैं, और जो बाकी के 2 है गोरिल्ला और चिंपांजी, दे आर फाउंड इन अफ्रीका, वो अफ्रीका के फॉरेस्ट में फाउंड किया जाता है। एप्स लाइक टू लिव इन ट्रीज, एप्स को ट्रीज पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेपर्ड अटैक दैम एंड ईट अप, लेपर्ड मीन्स जो चीताज होते हैं वो इनके ऊपर अटैक करते हैं और इन्हें खा जाते हैं। द एप्स फाइंड द सिक्योरिटी इन नंबर्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताई हूँ, एप्स हमेशा ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। दे फाउंड दे फील सिक्योर इन द नंबर्स मीन इन ग्रुप्स में उनको एकदम सिक्योर फील होता है। गिब्बन्स आर स्लेंडर इन बॉडी एंड लिम्स, दे कैन ऑल्सो वॉक इरेक्ट, their height is about 1 meter and they have long arms. Their weight is 5 to 7 kilograms. They live on trees. Now gibbons are slender in body and limbs. Slender means वो थोड़े से स्लैंड होते हैं। They also can walk erect, वो भी थोड़ा सा erect यानी कि हल्का सा straight walk कर सकते हैं। Their height is about 1 meter and they have long arms. Long arms means उनके हाथ लंबे होते हैं और 1 मीटर तक होते हैं। Their height is about 1 मीटर, उनकी हाइट 1 मीटर के जितनी होती है। Their weight is 5 to 7 kilograms, उनका वेट 5 to 7 kilograms होता है। They live on trees. Gibbons also like to live on trees, उन्हें भी ट्रीज पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है।
The body of the orangutans is covered with carrot red furs. Their height is up to 150 centimeters. Now orangutans, their body is covered with carrot red fur. उनकी बॉडी जो होती है वो कैरेट रेड कलर की फर से कवर्ड होती है. देयर हाइट इज अप टू 150 सेंटीमीटर. मतलब उनकी जो हाइट होती है 150 सेंटीमीटर होती है और वेट होता है 75 to 90 kilograms. It is very heavy, 75 to 90 kilograms. They use canicles of the hands and full soles of feet for walking. They build nests in trees and thick forest. Now where they lived in nest. And where they build the nest, वो अपना nest कहाँ बनाते हैं? एकदम thick forest में. Hair and skin color of the gorillas varies from brown to black. Their height is up to 175 centimeters. Their weight varies from 150 to 250 kilograms. They are very strong and furious. They use canicles of hands and full soles of the feet while walking. Now hair and skin color of gorillas की जो hair बाल वो और स्किन के कलर होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक. कुछ उनके ब्राउन होते हैं और कुछ उनके ब्लैक होते हैं, कुछ सेम नहीं होता है. ठीक है. और उनका जो वेट होता है वो 175 उनकी जो हाइट होती है वो 175 सेंटीमीटर्स होती है. ठीक है. और उनका वेट होता है 150 to 250 kilograms. It is very heavy. They are very strong and ferocious. वो बहुत ही ज़्यादा strong होते हैं. They use their canicles of hands and full sole of the feet while walking. मतलब चलने के लिए वो अपनी पूरी सोल लगा देते हैं. Now chimpanzees have black hairy body. Their height grows from 150 to 165 centimeters. Their weight varies from 50 to 80 kilograms. Now chimpanzees की जो बॉडी होती है वो ब्लैक हैरी बॉडी होती है. ठीक है. उनकी हाइट कितनी ग्रो करती है? 150 to 165 सेंटीमीटर्स. किसकी? चिंपैंजीज की. Their weight varies from 50 to 80 kilograms. उनका जो वेट होता है वो 50 से लेके 80 kilograms तक हो सकता है. They walk on both hands. वो कहाँ कैसे वॉक करते हैं? अपने दोनों हैंड से वॉक करते हैं. Chimpanzees are more intelligent than other apes. They have brain of 300 grams in their body, weight of 80 kilograms. Men have brains of 1500 grams in their body, weight of 70 kilograms. Thus the chimpanzees resemble man more than the other apes. They have a serious looking face. Now chimpanzees क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बाकी अदर एप्स से अगर कंपेयर करें तो. बाकी के एप्स में उतना इंटेलिजेंट पावर नहीं होता है जितना चिंपैंजीज में होता है. ठीक है. दे हैव ब्रेन ऑफ 300 ग्राम्स. उनके बॉडी में जो ब्रेन होता है उनका वेट 300 ग्राम्स होता है और उनका बॉडी का वेट 80 किलोग्राम्स होता है. ठीक है. और इसी चिंपैंजीज को अगर मैन से कंपेयर करें तो मैन हैव अ ब्रेन ऑफ 1500 ग्राम्स एंड वेट 70 किलोग्राम्स. मैन का जो वेट होता है वो 1500 ग्राम्स होता है और जो बॉडी वेट होता है वो 70 किलोग्राम्स होता है. ठीक है. तो चिंपैंजी से काफ़ी वेट में तो कम ही होता है. Thus the chimpanzees resemble man more than other apes. They have a serious looking face. Chimpanzees का जो फेस होता है बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुकिंग फेस होता है. फनी फेस तो होता नहीं है. A chimpanzee's lifespan is about the same as human. Hence a 9-year-old chimp would be an ideal companion for a 9-year-old boy. They like to be among humans. And they have much in common. चिंपैंजीज क्या है? ह्यूमन बीइंग से कुछ इसमें फील्ड में कॉमन होते हैं. राइट. एज यू कैन सी द लाइफ स्पैन ऑफ चिंपैंजीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ही ज़्यादा सेम होता है.
और 9-year-old चिम मतलब चिंपैंजीज का 9 years old जो छोटा बेबी है, इट वुड बी आइडियल कंपेनियन फॉर 9-year-old ओल्ड बॉय। मतलब चिंपैंजीज का जो 9 year का जो चिम होता है वो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ 9 years old जो 9 साल का बच्चा होता है उससे कंपेनियन हो जाता है। दे लाइक टू बी अमॉन्ग ह्यूमंस मतलब चिंपैंजीज को ह्यूमन बींग्स की तरह रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। दे हैव सच कॉमन इन मतलब ह्यूमन बींग्स की कुछ हैबिट्स चिंपैंजीज में कॉमन होती है। द यंग चिंपैंजीज कैन बी ट्रेन टू learn many things, to wear clothes, eat on table. Once they learn to wear clothes, they take delight in wearing new clothes. चिंपैंजीज को ह्यूमन बींग्स की तरह क्लोथ्स यानी कि कपड़े पहनना अगर सिखा दिए तो उन्हें कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगा। दे वुड ऑल्सो लाइक टू ईट ऑन टेबल्स, उन्हें टेबल्स पे खाना भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्दी लर्न कर लेंगे, है ना। एंड they'll be like to be like humans, उन्हें ह्यूमंस की तरह रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर वो लर्न कर लिए ह्यूमंस की तरह रहना, कपड़े पहनना, खाना खाना, तो बहुत ही जल्दी ह्यूमंस की तरह लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर टुडेज लेसन. I hope you all have understood the lesson. It's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. See you soon. Bye.